काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो पहले मुझे एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए कि डायरेक्टली कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. There's no specific answer, but unpredictability काफ़ी ज़्यादा है. How many hours does an average aspirant study? IIM Ahmedabad would be difficult, so different IIMs have different selection criteria. Was there any student जिसको काफ़ी कम CAT score आया but they got into IIM? Flagship course के लिए नहीं, but there are executive programs. If you are preparing for CAT, planning to pursue an MBA in India, or confused if you should study abroad or study in India, this podcast is for you. Today, we have Anant Chhajer, who has studied at IIM Ahmedabad and worked in a strategy consulting firm called Accenture, and now he creates content to help other MBA aspirants achieve their dreams. Hello, Ananta. Hi Shama. Thank you for inviting me, and very humble to hear your introduction. इतना कुछ किया है यार मैंने life में. Of course. So let's move deeper into your introduction. Sure. And let's discuss a bit about your career trajectory. Okay. तो स्कूल से लेके अब तक क्या क्या किया है? So काफी academic journey रहा है. After school, did my engineering. Engineering के बाद worked in an analytics firm. So I joined an analytics firm. Basically, I had in mind to go for MBA, appear for CAT. So I did appear for CAT and got a 99.21 percentile. However, I needed a little bit more to get into IIM ABC. So thought about appearing for CAT again. Went into this analytics firm, ZS Associates. Worked there for a year. Attempted CAT again. Got a 99.91 percentile. And then joined IIM Ahmedabad. Post IIM Ahmedabad, joined Accenture. Worked there for 2-3 years approximately. And after that, deep dived into content creation. Wow. So how did you move from analytics to strategy? So it was a natural, I think, analytics was like pre-MBA thing. So post-MBA, it happened to be strategy. So the courses I took at IIM Ahmedabad was also related to strategy, consulting. And consulting is kind of a generic kind of a role where once you enter, you can like literally go into any direction. So that is what I was thinking about. Let's get into consulting, and then probably after that I can think about what is the exact domain I want to get into. So analytics happened because that was the best role I could get after engineering from my college. And after that, MBA happened, strategy, and post that was my Accenture journey. तो इसके बीच में IIM Ahmedabad में did you do any internships या कोई और programs as well? Yes, like part of the curriculum itself, कुछ करना ही पड़ेगा internship. It's mandatory 2-month internship. So everyone does that. I did that with Aditya Birla Group. It's a leadership program at Aditya Birla Group that I did. And I specifically worked with Aditya Birla Capital in that internship. अच्छा, तो ये is it a structured program जो हर MBA IIM as Yes, so different people will choose different internships. So obviously there are different like consulting, finance. So it kind of gives you an option to explore some domain before you take your final placement. In my case, for example, in the first day, I got into another company in investment banking. It was a domestic investment banking firm. However, I decided because I have time to explore, let's do general management. So what does these general management firms do is once you join these firms, they will rotate you across stints. In 1 year, you will have at least like 3 or 4 stints across different companies. So maybe if you join say Tata or Aditya Birla Group, you will be rotated across like Aditya Birla Fashion, Aditya Birla Capital, across those companies. And you can have 3 or 4 months of stint at each of these companies. So that's the kind of a general management program that happens, these kind of leadership programs. And after 1 year, you join a specific company. So this is the structure of the program and I wanted to explore this. So as part of the internship program, it's an internship program within that leadership program itself. And you join one specific company here. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले बिफोर जॉइनिंग IIM अहमदाबाद और बिफोर गोइंग फॉर एन MBA और CAT इन द फर्स्ट प्लेस, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो पहले मुझे एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए कि डायरेक्टली CAT के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. Right. Important question and there's no specific answer, but honestly अगर बोलूँ तो अगर किसी को product management operations में जाना है, then probably yes, work experience can help. But apart from that, I would say if you want to pursue MBA from India, then join the college as soon as you get your dream college. जब आपको लगता है कि आपकी competency के according, आपकी capability के according आपको college मिल रहा है, just join that college. Reason simple है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि MBA without work experience does not make sense. बट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉन्टेक्चुअलाइज मत करो इंडियन में, बिकॉज इंडिया में आपके अगर देखोगे सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट है, रिक्रूटमेंट मार्केट डिफरेंट है, द आउटकम जो आपको चाहिए MBA से वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल सिलेक्शन क्राइटेरिया का अगर बात करें, MBA कैसे होता है इंडिया से, कैट इज़ द प्राइमरी एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा. कैट का स्कोर वैलिड होता है जस्ट फॉर 1 ईयर, नॉट लाइक GMAT जैसा नहीं है कि आप 5 years तक उसी स्कोर को लेके आप अप्लाई कर सकते हो.
एंड ऐसा भी नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे सकते हो, इट्स जस्ट वन डे. सो आपका फुल फ्यूचर डिपेंड करता है उस एक दिन पे, एंड उस एक दिन अगर वो खराब होता है तो आपका एक साल चला गया. ओके, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है. सो अगर आज मुझे 99 परसेंटाइल मिलता है, देयर इज नो गारंटी द नेक्स्ट कैट एग्जाम दैट आई अटेम्प्ट आई विल गेट अ 99 परसेंटाइल अगेन. सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन दैट सेंस. तो वो समझना पड़ेगा पहले. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप हार्वर्ड ज्वाइन करते हो मान लो आफ्टर से 5 or 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप जो रोल्स देख रहे हो दैट इज मोर लाइक कंसल्टेंट टू मैनेजर लेवल का रोल देख रहे हो. इन इंडिया अगर आप ज्वाइन करते हो IIM एंड सेम कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर रहे हो, तो आप एसोसिएट टू कंसल्टेंट लेवल का रोल ज्वाइन करने का सोच रहे हो. व्हाट विल हैपन इज यू विल ज्वाइन एज अ कंसल्टेंट, आफ्टर 2-3 years यू विल बिकम अ मैनेजर. सो टाइमलाइन वाइज आप हार्वर्ड एंड IIM ग्रेजुएट आर एट द सेम लेवल देन, मतलब अगर टाइमलाइन वाइज देखोगे. एंड अगर आप इसको और लाइक डीप एनालाइज करो कि 5 or 6 years के बाद अगर आप जाते हो MBA करने इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी इन एसोसिएट कंसल्टेंट लेवल ओनली. तो आपको हायर किया जाएगा कंसल्टेंट लेवल के लिए. सो बेसिकली आप टाइमलाइन वाइज पीछे मूव हो गए, राइट. एंड मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेशर फ्रेंड्स हैं, तो उनका अगर देखोगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दे डिड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एज वेल देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन अ फ्रेशर एंड पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस. सो इट ऑल मेक्स सेंस. जब आपको कॉलेज मिल जाए, जस्ट जॉइन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. And how much is the difference between a placement in the same firm from IIM Ahmedabad compared to कोई और college? कोई और कॉलेज लाइक इन इंडिया इटसेल्फ और से जैसे फॉरेन अगर- MBA? We can take up both. जैसे Accenture में अगर IIM Ahmedabad के बाद you started working, तो पहली बात कंसल्टिंग में कौन से रोल्स होते हैं, व्हाट इज द हायरार्की इन कंसल्टिंग, ओके, एंड सेकेंडली डिफरेंस क्या होता है अगर IIM Ahmedabad की जगह फॉर एग्जाम्पल IIM और टियर 2 अमृतसर से किया होता, तो व्हाट वुड हैव बीन द डिफरेंस? टिपिकल ट्रेजेक्टरी होती है आपकी, या तो एनालिस्ट और एसोसिएट से आप शुरू करोगे, देन सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट में, कंसल्टेंट के बाद मैनेजर और एंगेजमेंट मैनेजर्स, वट एवर इज द डेजिग्नेशन. उसके बाद आप जाते हो सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पे चले जाते हो, प्रिंसिपल बनते हो, फिर पार्टनर बन जाते हो एक फर्म में. सो दिस इज अ टिपिकल ट्रेजेक्टरी इन कंसल्टिंग, इन एनी कंसल्टिंग फर्म. इसके बाद अगर आप सैलरी वाइज देखोगे तो रोल्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉम एनी अदर कॉलेज वो सेम रोल के लिए हायर हुआ तो उसकी सैलरी सेम रहेगी. इफ यू आर हायर्ड फॉर द सेम रोल, योर सैलरी विल बी सेम. हाउएवर थोड़ी डेजिग्नेशन वाइज चेंज हो सकती है, या फिर एक डेजिग्नेशन नीचे आप हायर होते हो, या फिर रोल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. सो व्हाट हैपेंस इज आपका हो सकता है 30 लाख मान लो अगर आपको IIM से मिल रहा है, तो द अदर कॉलेज माइट बी हायर्ड एट से 20 और 15 लाख. सो ये डिफरेंस रह सकता है. बट अगर आप सेम रोल के लिए सेम डेजिग्नेशन के लिए हायर हुए हो एंड एग्जैक्टली सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो कंपनी में, देन योर सैलरी विल बी मोर और लेस द सेम. ऑब्वियसली द थिंग इज IIM अहमदाबाद से अगर 50 लोग सिलेक्ट होते हैं उस रोल के लिए फ्रॉम मे बी अनदर कॉलेज, 5 people विल बी सिलेक्टेड. दैट्स द डिफरेंस. ओके, सो यू ऑल्सो मेंशन दैट कैट का जो जर्नी होता है वो थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू GMAT. सो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो सारे कैट एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए बट पता नहीं होती? यार एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, पैटर्न चेंज हो सकता है. क्वांट एंड LRDI सेक्शन डिफिकल्ट होता है GMAT से, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी रहती है ऑब्वियसली. एंड लक फैक्टर भी रहता है ऑनेस्टली कैट में. सो दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर. जब उनको परसेंटाइल नहीं आया, दे थिंक दैट मे बी उनमें कुछ कमी थी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट ऐसा नहीं है. लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखो तो 1-2 क्वेश्चन से परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है. सो 1-2 क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है. एंड इन फैक्ट इन प्रेपरेशन डेज एज वेल अगर आप देखो तो अ लॉट ऑफ पीपल कीप लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट रिसोर्स, परफेक्ट कोचिंग टू ज्वाइन. बट ऐसा परफेक्ट रिसोर्स, परफेक्ट कोचिंग नहीं होता. देयर आर गुड रिसोर्सेज, देयर आर गुड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बट आप उस पर ओवर रिलाई ऑब्वियसली नहीं कर सकते. बिकॉज अगर एक कोचिंग से या एक रिसोर्स पढ़ के, एक बुक पढ़ के कोई 50 बच्चे भी 99 परसेंटाइल लाते हैं, मतलब आप भी ला सकते थे. इट डजंट मीन कि आप उस पर डिपेंड कर रहे हो. So that is something a lot of people waste a lot of time in finding that perfect resource, perfect coaching मुझे नहीं मिला तब तक मैं preparation start नहीं करूँगा. That is something you have to avoid. Start your preparation, self preparation करो. And एक बहुत interesting story बताई थी मुझे एक जने exactly context में fit होती है. That is when a bird sits on a tree, जब वो branches में बैठता है, it does not sit with a confidence कि branches will not break. It can break, but it has confidence in its ability कि अगर वो break भी होता है, I have the wings to fly. तो वो ट्री जो है, ब्रांचेस जो है, आपकी कोचिंग है जहाँ पर आप बैठ सकते हो, आपको सपोर्ट देगा, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. बट वो ब्रेक भी होता है, तो जो विंग्स है वो आपका सेल्फ प्रेपरेशन है. बेसिकली सेल्फ प्रेपरेशन ही आपका विंग्स है एंड यू कैन फ्लाई ऑन योर ओन एज वेल. सो स्टॉप लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट रिसोर्स एंड परफेक्ट बुक्स एंड एवरीथिंग. स्टार्ट योर प्रेपरेशन, यू विल फाइंड एवरीथिंग अलॉन्ग द जर्नी.
This is a very great analogy, jo I think can be very helpful for our students. My other concern was you went from 99.21 to 99.91 in a year. How did that year look like? उसमें तुमने ऐसा क्या कर लिया कि वो 0.70 because unpredictability जैसे we Right. spoke about. उसके अलावा what was there that you did? Honestly, nothing different. As I said, it's about luck. Us din, when I scored a 99.2, I got certain questions wrong, which is silly mistakes. I could have got that right that year itself. It was all a matter of luck. 99.2 and 99.9 जो स्कोर करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. इनफैक्ट आई थिंक जब मैंने 99.2 स्कोर किया था उस साल शायद ज़्यादा प्रिपरेशन की थी बिकॉज टाइम भी ज़्यादा था एंड एवरीथिंग वाज मोर. उसके बाद मैं वर्क कर रहा था तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द मॉक्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स. तो वहाँ प्रिपरेशन ऑब्वियसली लास्ट ईयर से कम हुई होगी बट ऑब्वियसली आई हैड दैट बेस कवर्ड. एंड 99.2 एंड 99.9 आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट लक. मतलब उस दिन पे डिपेंड करता है. अगर उस दिन मेरा एक और 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते तो आई वुड हैव कम डाउन टू 99.5 प्रॉब्ली. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो एक IIM अहमदाबाद में एडमिट के लिए 99.91 लाने के लिए हाउ मेनी आवर्स डज एन एवरेज एस्पिरेंट स्टडी? सो कैट एग्जाम इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक JEE एग्जाम या फिर UPSC एग्जाम जहाँ आपको बहुत आवर्स कमिट करने पड़ेंगे. इट्स मोर लाइक आप अगर 1-2 आवर्स भी पढ़ते हो बट डेली पढ़ते हो कंसिस्टेंटली पढ़ते हो इट विल बी इनफ फॉर यू. ऑब्वियसली अगर आपके पास 1 ईयर है आप 1-2 आवर्स दो एवरी डे इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. इसको ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 1 मंथ में सोचोगे कि मैं 10 आवर्स पढ़ लूंगा एंड यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन बिकॉज वो लॉजिक डेवलप होने में टाइम लगता है, वो थिंकिंग डेवलप होने में टाइम लगता है एंड वो माइंडसेट डेवलप होने में टाइम लगता है. इट्स मोर ऑफ अ लॉजिकल एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है. कोई ऐसा डिफाइंड सिलेबस भी नहीं है कि अच्छा ये नहीं किया तो मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा लाइक अनलाइक UPSC प्रॉब्ली. सो दैट्स वाई आप कम पढ़ो बट कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ. इट यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन. अगर आप 6 मंथ्स में भी क्रैक कर सकते हो, आप 3 मंथ्स में भी क्रैक कर सकते हो. मे बी एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगे, 4-5 आवर्स एवरी डे देना पड़ेगा आपको. बट इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टडी अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशन. इट्स मोर लाइक अ मॉक ज़्यादा अटेम्प्ट करो, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो. तो जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं GMAT और टेस्ट स्कोर्स एंड एकेडमिक स्कोर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो पिक्चर में आती है, जैसे उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इफ़ देव डन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच मेक्स देम स्टैंड आउट, तो उससे भी उनको एक एडमिट मिल सकता है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड और इवन स्टैनफोर्ड. राइट. तो IIM में भी ऐसा कुछ होता है कि अगर कैट स्कोर के अलावा व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट कम इन पिक्चर एंड इफ समवन हैज अ लोअर कैट स्कोर कुछ हो सकता है क्या? So the thing is, profile does come into the picture in Indian B schools as well, but to a lesser extent, I would say, because आपकी past academics matter करती है. There are like fixed weightage रहते हैं past academics में, that is very important. उसके बाद आपका academic background क्या है? If you are coming from engineering background, probably you have to score a higher percentile compared to someone from a non-engineering background. उसके बाद gender diversity के points होते हैं, work experience के points होते हैं, but अगर आप overall component देखोगे तो 5-10% रहता है work experience पे. तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कुछ change हो जाएगा by getting more work experience या फिर doing extraordinary things having extraordinary things on your profile. CAT still remains like major component CAT रहता है, but yes, past academics, आपके overall profile, ये सब matter करते हैं. कुछ colleges होते हैं जो profile based भी होते हैं. For example, is SP Jain, ISB, ये सब colleges हैं जो profile based भी है. So there obviously it's similar to a foreign MBA जहाँ पर आप profile improve करोगे over the years, तो it will help. But apart from that, most of the colleges, IIMs especially अगर आप देखोगे, CAT score is very important. उसके बाद obviously your personal interview and जो VAT session रहेगा या GD रहेगा जो भी conduct करेगा IIM, that is a major component. That has like more than 50-60% weightage in your final selection. If a student does not have good academics in the past, can they still get into an IIM Ahmedabad? IIM Ahmedabad would be difficult. So different IIMs have different selection criteria. IIM Calcutta gives less weightage on past academics, so IIM Calcutta is possible. IIM Ahmedabad will be difficult. IIM Bangalore or IIM Indore would become almost impossible. So that is how the different colleges have different selection criteria. We have to deep dive into each of these IIMs to understand what exactly is their selection criteria and if past academics matters there or not. IIM Ahmedabad, it does matter to an extent, but still in IIM Ahmedabad, the thing is, if you're coming from a non-engineering background, you can still make it with having like less CAT percentile or less past academics as well. But yeah, it depends on individual profiles. Okay, so it also they also want a diversity is what you're trying to say. Yes, IIM Ahmedabad definitely. It
gives a lot of weightage on diversity. In fact, there are fixed components, like there are fixed categories from AC4 category. They call it AC1, AC2 till AC6 category. AC4 is for engineers क्या and होता maybe है the ये AC कैटेगरीज? So, depending on your academic background, आप different categories में जाओगे. AC4 is for engineers. AC3 I think is for economics, commerce background. AC5 is for again those humanities background. AC1 medical background के लिए है. तो अगर आप AC1, AC5 category में आते हो तो कम लोग appear करते हैं उस particular category से MBA करने के लिए. So definitely it's easier to get in from those categories, AC1, AC5. And AC4 is very difficult. Engineers, because maximum CAT aspirants engineers होते हैं, and percentile भी देखोगे तो requirement high रहती है. AC3 again is also difficult, slightly easier than AC4. So depending on your academic background, you will be divided into academic categories. And ये basically इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों को like if there is a doctor applying for IIM Ahmedabad, वो बस अपने कैटेगरी में ही compete करे. He or she does not have to compete with an engineer to get a short list. But obviously आपको एक short list आ गया, उसके बाद final selection में it will be a consolidated list. तो आपको सबसे ही compete करना पड़ेगा. So थोड़ा advantage रहता है अगर आप other academic background से हो तो. Okay. What is that one mistake that CAT aspirants are making while studying for CAT? I think as I said that wasting a lot of time in looking for that perfect resource that I already covered. कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये सोच लेते हैं कि कैट एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, मुझे इसी तरीके से प्रिपेयर करना है. बट एक्चुअली लॉजिकल चीज़ है, मतलब इट्स नॉट एप्टीट्यूड प्रिपरेशन है बेसिकली. इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में. सो दैट्स द एंटायर थिंग. कम प्रिपेयर करना चाहिए. नहीं, कम प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट कि आप कम प्रिपेयर किए बिना क्रैक नहीं कर सकते ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, बट इट्स नॉट दैट कि एक डिफाइंड सिलेबस है, आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं किया तो आप क्रैक कर ही नहीं सकते कैट तो एग्जामिनेशन. इसको इजी बनाने के लिए इफ यू कैन रेकमेंड सम बुक्स फॉर बुक्स वर्बल कॉन्ट एंड DILR. सब बेस्ट होते हैं एक्चुअली कोचिंग मटेरियल्स, जहाँ पर बहुत कंसोलिडेटेड रहते हैं चीज़ें कि डिफरेंट मतलब एक टॉपिक से अगर 30-50 क्वेश्चंस है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 50 क्वेश्चंस रहेंगे. बुक्स में क्या होता है, वो 50 क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो 50 क्वेश्चन है एक्चुअली 500 क्वेश्चन रहते हैं एक बुक में. क्योंकि उस 500 क्वेश्चंस में रिपीटेड मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. 50 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे सेम लॉजिक से, बस नंबर्स चेंज कर दिया. तो इसलिए टाइम ले लेता है थोड़ा बुक्स. इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कोचिंग मटेरियल या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 10 ईयर्स 25 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट फिर भी अगर आपको थ्योरी पढ़ना है बुक से तो वर्बल के लिए यू कैन डू मे बी मीनाक्षी उपाध्याय का एक बुक है, मीनाक्षी उपाध्याय, अरुण शर्मा, वो कर सकते हो. क्वांट के लिए निशित के सिन्हा है, सर्वेश वर्मा आई थिंक है उनका, तो वो आप कर सकते हो. LRDI के लिए कोई बुक नहीं है. देयर वाज अ चेंज इन पैटर्न सिंस 2016. उसके बाद कोई बुक नहीं है जो लाइक एग्जैक्टली कैट लेवल सेट्स देता है. द बेस्ट रिसोर्सेज विल बी योर मॉक्स, कोचिंग मटेरियल या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके. सो हैज देयर बिन तुम्हारे सर्कल में या फिर तुम्हारे बैच में वाज देयर एनी स्टूडेंट जिसको काफ़ी कम कैट स्कोर आया बट दे गॉट इनटू IIM अहमदाबाद? यार देखो, हम लोग डिस्कस नहीं करते थे कैट परसेंटाइल वंस वी गॉट टू IIM, सो वी डोंट नो ईच अदर्स कैट परसेंटाइल. बट ऑब्वियसली देयर विल बी पीपल, एज आई सेड, IIM अहमदाबाद आप 90 परसेंटाइल पे भी जा सकते हो, जनरल कैटेगरी एज वेल, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड. सो ऑब्वियसली देयर वुड बी पीपल हु वुड हैव गॉटन एट 90 परसेंटाइल एज वेल. देन ऑब्वियसली देयर आर पीपल डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं. सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन हैपन, जिसमें लोअर कैट परसेंटाइल में यू कैन गेट इनटू IIM अहमदाबाद. सो ऑब्वियसली देयर वुड बी पीपल, बट वी नेवर डिस्कस कैट परसेंटाइल वंस वी मेड इट टू द इंस्टीट्यूट. सो कैट के अलावा इज देयर एनी अदर टेस्ट दैट IIM अहमदाबाद एक्सेप्ट्स, GMAT वगैरह कुछ? फ्लैगशिप कोर्स के लिए नहीं, but there are executive programs. There's PGPX, which is the executive program at IIM Ahmedabad. So there GMAT, they accept GMAT scores. And I think there are a couple of other examinations, other programs as well, like BPGP and everything, which have different examinations. They're online tests and stuff as well. So there are a couple of programs under IIM Ahmedabad, but flagship course अगर आपको करना है जो PGP प्रोग्राम है, उसके लिए आपको कैट देना पड़ेगा. ठीक है. अब्रॉड में जब हम कॉलेजेस को देखते हैं तो वी जनरली सी द QS रैंकिंग एंड टाइम्स हायर एजुकेशन करके एक रैंकिंग होता है, हम वो देख लेते हैं. उसके अलावा वी सी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, एलुमनाई कौन कौन है, उनका रिसर्च फैसिलिटी क्या है. वैसे इंडिया में IIM अहमदाबाद बेस्ट है, सो व्हाट मेक्स इट द बेस्ट? कैसे डिसाइड हुआ कि दिस इज द बेस्ट? यार आई थिंक इंडियन MBA का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप फॉरेन MBA में देखोगे तो वहाँ कॉलेजेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसमेंट. वहाँ पर कंपनीज कैंपस में नहीं आएंगी, तो यू हैव टू अप्लाई आउटसाइड, मतलब खुद से अप्लाई करना पड़ेगा. सो
इंडिया में क्या होता है, जो प्लेसमेंट चीज़ है ना, दैट मतलब बिकम्स पैरामाउंट बिकॉज वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट हो जाती है कि हमें प्लेस करना है, एंड पीपल डोंट कम विद दैट माइंडसेट कि वो तो कॉलेज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ आई एम पेइंग दैट फीस आई हैव टू गेट दैट अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज. सो आई थिंक प्लेसमेंट नंबर्स बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स होता है, जो भी होता है, आप अल्टीमेटली जाके मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज देखते हो. I think that is how most people decide their choice. But yes, there are a couple of rankings. Again, जो rankings आपने mention किया, वो Indian MBAs के लिए भी exist करती है, and they rank it. But I don't think a lot of people have trust on those rankings as well in India, especially. Median package, average package, paramount obviously determine करते हैं. Social validation, I think India में काफ़ी चीज़ें determine करते हैं. Especially अगर मान लो कोई lower ranked IIMs हैं. There are pretty much good colleges apart from IIMs as well. FMS हो गया, XLRI हो गया. But some people might just choose an IIM tag because वो social validation provide करते हैं. So I think वो social validation भी एक parameter हो जाता है जो decide करता है choice आपकी. Okay, and your median package, what is the median package or an average package of an IIM graduate? It will be around 30 to 35 lakh. वो I think CTC होगी 35 lakh तक. 25 lakh तक फिक्स सैलरी होती है, 25 to 30 फिक्स सैलरी होती है. On top of that, joining bonus, variable bonus हो सकता है. So it takes it to 35 lakh on an average. And obviously, कंसल्टिंग का डिफरेंट होगा, फाइनेंस का डिफरेंट होगा, बट द आइडिया इज एवरेज. सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में मिलता है सैलरी? फाइनेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करते हो, वीसी फर्म ज्वाइन करते हो, पीई प्राइवेट इक्विटी ज्वाइन करते हो, तो प्रॉब्ली दैट विल बी हाईएस्ट अलॉन्ग विद बोनस कॉम्पोनेंट इफ यू थिंक. उसके बाद कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ईसॉप जो स्टॉक रिक्वायरमेंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सीटीसी इन्फ्लेट ऑब्वियसली कर देता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में. कंसल्टिंग एंड फाइनेंस ये सब में क्या होता है ये ईसॉप एंड हाउ डज इट अफेक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पर मान लो आपका फिक्स सैलरी है 20 लाख, उसमें से आपका 10 लाख 15 लाख हो सकता है और वेरिएबल हो, ज्वाइनिंग बोनस एंड अदर थिंग्स. उसके ऊपर हो सकता है आपका 30 लाख 40 लाख आपका ईसॉप रहेगा, विच इज़ वेस्टेड ओवर 4 years. मतलब एवरी ईयर आपको 10 लाख मिलेगा, बट वो सीटीसी जो है वो आपका ले जाते हैं ऑलमोस्ट 70 लाख 80 लाख को, बट आपका जो फिक्स सैलरी है दैट रिमेन्स एज 20 लाख इटसेल्फ. सो वो ईसॉप कॉम्पोनेंट्स होते हैं. यूजली प्रोडक्ट कंपनीज जो होते हैं वो ज़्यादा ईसॉप कॉम्पोनेंट्स प्रेफर करते हैं, एंड ऑब्वियसली उसका लाइक अलग एडवांटेज भी है. ओवर द ईयर्स वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो सकता है उस स्टॉक का, सो यू कैन अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू स्टे इन दैट कंपनी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. वेराज कंसल्टिंग फाइनेंस में ज़्यादा फिक्स पे बिलीव किया जाता है, फिक्स ज़्यादा रहता है, एंड ऑब्वियसली वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स भी काफ़ी रहते हैं इन कंसल्टिंग एंड फाइनेंस डिपेंडिंग ऑन द डील साइजेस दैट यू डू. तो फॉर एन एस्पिरेंट हु वांट्स टू स्टडी इन इंडिया फॉर एन MBA, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो प्लेसमेंट उन्हें जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द फोरमोस्ट थिंग जिस पे वो डिसाइड करेगा उसका बेस्ट MBA ऑप्शन कौन सा है. तो व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी इन इंडिया जो कोई कॉलेज प्रोवाइड करती है, एंड विच कॉलेज इज दैट? I think somewhere it will be IIM Ahmedabad, Bangalore, or Calcutta only. Maybe Calcutta because it's good for finance, but I don't know exactly which is the college which provides the highest salary. ISB भी हो सकता है, but it can go upwards of 1 crore. Mostly in PE या फिर कोई IB firm हो within India if you are looking for placement. हो सकता है वो 1 CR जाए, but it will be along with the bonus. So maybe आपका 50-60 लाख हो सकता है आपका fixed हो, 100% bonus component उसके साथ आ जाएगा, तो हो सकता है that can go upwards of 1 CR as well. वाओ. एंड जो प्लेसमेंट का मैंने बताया, लाइक प्लेसमेंट इज पैरामाउंट, होना नहीं चाहिए एक्चुअली इंडिया में, बट दैट इज द रियलिटी. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शुड लुक एट द फैकल्टी, रिसर्च एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली वो डिफिकल्ट है थोड़ा, वो कल्चर लाना इंडिया में, इट्स स्टिल अ बिट डिफिकल्ट. दिस इज मोर देन मोस्ट UK कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट होता है. राइट, या अगर crazy. आप एंड अगर आप फॉरेन जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफरेंट नंबर्स एज वेल. मैं डोमेस्टिक पैकेज का बात कर रहा था, सो फॉरेन पैकेजेस कैन बी वेरी डिफरेंट, स्पेशली मार्केट्स रोल में एंड फाइनेंस में फॉरेन पैकेजेस भी ऑब्वियसली बहुत काफ़ी हाई जाते हैं. इफ यू हैव 30 seconds टू पिच कि प्लेसमेंट के अलावा IIM अहमदाबाद में और क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से एवरी पर्सन शुड स्टडी एट IIM अहमदाबाद? Yeah, I don't think I need to pitch IIM Ahmedabad in India especially, but the idea is simple कि network काफ़ी अच्छा होता है. The kind of people you interact with, they are super competitive as well. They push you to your limits. So I think the kind of camaraderie as well that you have, that's very, very competitive, but you get very good friends as well and a very good network as well. So if I have to start a business today, if I have to reach out to a VC firm, almost
like I'm pretty sure there will be some friend at least sitting in some VC firm. So I can just contact him and at least get an entry into it. Obviously, jo final whether I get the funds or not, that depends on my overall credibility, overall business. But at least I can get that entry because I have that particular person. If I want to look for a job, apply in any company through a referral, I will have someone from IIM Ahmedabad sitting in that particular company. So that also becomes easy. There are alumni mails and stuff as well. Alumni job portals होते हैं जहाँ पर constantly आपको job के कुछ ना कुछ openings आए जाते हैं. So that also helps. So IIM अहमदाबाद में एक बार एडमिशन होने के बाद जब तुम कैंपस पे जाते हो तुम्हें कैसा फील हुआ था फर्स्ट टाइम? As soon as you reach the campus, I think सब normalize हो जाता है because 400 लोग सेम चीज़ ही अचीव करके आए हैं, सेम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है. एंड आई थिंक डे 1 से फिर वो हसल फिर से शुरू हो जाता है. लाइक आप एक वीक पहले तक सोचते हो अच्छा आई एम अहमदाबाद, यू हैव अचीव समथिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट उसके बाद यार 400 पीपल हु हैव डन द सेम थिंग, हैव हैड द सेम जर्नी. आप जाते हो, अब आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपको अकेडमिक्स में भी अच्छा करना है. सो फिर से वो हसल शुरू हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक प्रीटी एवरेज अगेन. You're too humble to say that. No, actually मतलब वो रियलिटी है बिकॉज कोई भी IIM अहमदाबाद में जाएगा अनलेस अनटिल ऑब्वियसली अगर से वो नेचर से उसके नहीं आ रहे तो दे वुड अंडरस्टैंड कि वो अगर नहीं था कोई हम्बल, आई थिंक वो भी हम्बल हो जाएगा वहाँ जाके बिकॉज देयर आर really good people in every field. There are really good people. अगर आप finance में जाओगे there is someone who is like absolutely like has great knowledge, in-depth knowledge. Quant में बहुत किसी को in-depth knowledge हो रहेगा. So different fields में different लोगों को knowledge रहेगा. So you understand कि आप शायद best नहीं हो किसी भी एक field में. So there's competition in every field. So I think that's a great kind of a humbling environment as well for you. And there might be so much to learn जब इतने सारे fields के लोग एक साथ आते हैं. तो how does a typical day at IIM look like? So थोड़ा हेक्टिक बोल सकते हो बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस यू मेक. अगर आपको हेक्टिक बनाना है, आप बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप कर सकते हो. असाइनमेंट्स, केस स्टडीज़ एंड ऑब्वियसली प्लेसमेंट प्रिपरेशन, रेज्यूमे बनाना, ये सब मैंडेटरी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी फॉर गुड करियर. इसके साथ साथ क्लब्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है जिस पे आप टाइम दे सकते हो, इवेंट्स होता है जिस पे आप टाइम दे सकते हो. देयर कैन बी मैनी डिफरेंट थिंग्स. आई थिंक 50 क्लब्स है होंगे IIM अहमदाबाद में भी. सो देयर आर दोज फन एक्टिविटीज़ एज वेल. यू कैन डू पार्टीज एंड एवरीथिंग एज वेल. यू कैन अटेंड. तो वो सब चीज़ें रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस हेक्टिक इट डिपेंड्स कि आप कैसा लाइफ लेते हो. आप थोड़ा चिल भी ले सकते हो उसको, बस अपने चीज़ों पे फोकस करो, एकेडमिक्स एंड 1-2 क्लब ज्वाइन करो, नॉट गेट इन्वॉल्व विद 5 or 6 क्लब्स. सो बस वैसे ही रहते हैं. एंड आई थिंक अभी जो है लाइफ एट IIM वो थोड़ा चिल हो जाना चाहिए बिकॉज अगर आप देखोगे ChatGPT एंड एवरीथिंग AI, आप उसको यूज़ करके कितना कुछ कर सकते हैं. आई थिंक असाइनमेंट्स हम लोग जो करते थे, अगर मैं सिंपली अभी ChatGPT का यूज़ करूँ केस स्टडी एनालाइज करने के लिए, इट विल लाइक ऑब्वियसली मेक माई टास्क 10x ईजियर. सो अभी थोड़ा ईजी हो जाना चाहिए लाइफ अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली असाइनमेंट्स भी 10x इंक्रीज कर दिए प्रोफेसर्स ने. बट आई थिंक इट शुड बिकम ईजियर. बट एक वो रहता है ना कि लोगों का कि नहीं मैं IIM अहमदाबाद गया तो मुझे दिखाना भी है कि यार मैं बहुत हेक्टिक लाइफ जी रहा हूँ. आई थिंक वो कल्चर भी आ जाता है. सो अगर नहीं भी हो, पीपल वांट टू शो कि यार हाँ बहुत हेक्टिक था लाइफ मेरी तो लाइफ बहुत हेक्टिक थी IIM अहमदाबाद में. बिकॉज अगर आप देखोगे आई थिंक रघुराम राजन ने बोला था 90s जब भी वो उन्होंने किया था कि इफ़ यू सर्वाइव द फर्स्ट ईयर एट IIM अहमदाबाद यू कैन सर्वाइव एनीथिंग और सॉर्ट ऑफ. बट उस टाइम यार इंटरनेट भी स्लो होता था, आपको असाइनमेंट्स खुद का दिमाग लगा के सब कुछ करना था. हमारे टाइम इंटरनेट में ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल था. हम भी सेम बात बोल रहे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर 5-10 years एज वेल नाउ ChatGPT आ गया है, AI आपका सब कुछ हेल्प कर देगा. उसके बाद भी लोग कंटिन्यू करेंगे ये चीज़ कि बहुत हेक्टिक है लाइफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी बिकॉज टॉलरेंस भी कम हो जाएगा तब तक, कैपेसिटी भी हमारी कम हो गई है कंपेयर. यस वो भी हो सकता है बट इट्स आवर फॉल्ट राइट. इट्स नॉट द कॉलेजेस फॉल्ट कि वो वर्कलोड इंक्रीज कर रहे हैं. सो आई थिंक अगर आपको मैनेज करना है अच्छे से लाइफ, आप कर सकते हो. यू कैन स्लीप प्रॉपर 8 hours, आप अच्छे से सो सकते हो. बट अगर आपको काफ़ी चीज़ें करनी है देन ऑब्वियसली 3-4 hours स्लीप नॉर्मल रहता है. काफ़ी लोग 3-4 hours में सर्वाइव करते हैं स्लीप में. ओनली 3-4 hours? Yeah, because it's their choice as well, right? अब कैंटीन में अगर आपको बैठना है आफ्टर असाइनमेंट, यू सिट इन द कैंटीन फॉर 1 hour, यू टॉक टू पीपल. तो सोशलाइजिंग काफी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे हैव सो मच टू गिव इन एज वेल. एंड यू आर लिविंग इन द कैंपस ऑल अलोंग योर फ्रेंड्स. आप नीचे जाओ अपने डॉर्म से तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा कैंटीन में बैठा हुआ. यू टॉक टू वन ग्रुप, देन कोई और ग्रुप आ गया. सो वो चलता ही रहता है कैंपस में. 400 people living in one campus, all of your friends. सो आप इमेजिन कर सकते हो. इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड लाइफ इन एनी कैंपस. आई थिंक नॉट ओनली IIM. आई थिंक कोई सी भी कैंपस लाइफ आप एक्सप्लोर कर लो. इतने सारे फ्रेंड्स जब साथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट आ ही जाते हैं. करेक्ट. सो व्हेन यू वर स्टडीइंग एट
IIM जब तुम्हारा MBA चल रहा था तो ऐसी कोई चीज़ें हुई थी जो तुम्हें लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट, जो सिर्फ यहाँ पे होता है, ये कहीं और नहीं हो सकता? आई थिंक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जो मैंने ऑलरेडी कवर किया, दैट इज कि सब लोग शायद अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हैं, जब फर्स्ट टाइम आके देखते हैं कि अरे इतना कंपटीशन है कि मैं 99 लाके भी मुझे टॉप ग्रेड नहीं मिल रहा है, प्रॉब्ली देयर सम कंपटीशन, तो वो रहता है थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है, टॉक्सिक कंपटीशन जिसको बोलते हैं। हेल्दी कंपटीशन इज ऑब्वियसली फाइन, एवरीवन अप्रिशिएट्स इट, बट थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्राई करते हैं किसी का अच्छा उसका प्लेसमेंट बेटर नहीं हो, सो आई विल टॉक टू सर्टेन पीपल, मेक श्योर कि मेरा पहला नाम चला जाए, सो दोज थिंग्स काइंड ऑफ हैपन, थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन। बट पॉलिटिक्स भी होती है मतलब इन सब चीजों में। यस डेफिनेटली, आप जब उस एनवायरनमेंट में हो। सो डिड एनीथिंग हैपन विद यू व्हेन यू वर देयर? नॉट रियली एज ए स्पेसिफिक, या फिर मैं इतना डीप डाइव करता भी नहीं था किसी कंपनी से जाके पूछूं कि अच्छा क्या मिला था आपको मेरे बारे में या फिर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो फैक्टर, बट येस देयर वर सर्टेन इंस्टेंसेस कि ऐसी चीज़ें हो सकती है कि यू स्पीक अबाउट लाइक आप अपना नाम पहले भेजो कंपनी को, यू टॉक टू सर्टेन पीपल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक ये लाइफ में भी होता ही है, आउटसाइड द कैंपस एज वेल दिस कैन हैपन, राइट? तो मतलब वो जर्नी के लिए प्रिपेयर करता है कि अगर आपको किसी जॉब के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे कन्विंस करने का लोगों को कि यार आई एम अ बेटर कैंडिडेट, तो आप पहले पुश करोगे, सीनियर से बात करोगे, एलुमनाई से बात करोगे, एंड यू वुड ट्राई टू गेट इनटू दैट कंपनी। सो दैट कैन हैपन इन लाइफ एज वेल, एंड सिमिलर थिंग्स डू हैपन इन द कैंपस। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है आप इंजीनियरिंग कैंपस में अगर होगे तो शायद नहीं होती थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम इतने मैच्योर भी नहीं थे जानने के लिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हो पहले। सो आई थिंक वो थोड़ी चीज़ें हैं जो MBA आप अगर जाओगे MBA करने, सो दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हैपन। इन सब का मैनेजमेंट सिखा देता है। यस, इट कैन हैपन इन लाइफ एज वेल। लैटरल आप जब भी हायरिंग के लिए जाओगे ये हो सकता है। So how many interviews did you sit for in Ahmedabad, and how many companies did you get offers from? So luckily I did not sit for many companies because मैंने first internship के लिए जब गया था तब मैं एक कंपनी के लिए बैठा था, that is on my day 1. तो इंटर्नशिप के लिए भी सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है और हर स्टूडेंट को एक इंटर्नशिप तो मिलती है? राइट, एवरी स्टूडेंट, बिकॉज वो मैंडेटरी पार्ट है, करिकुलम का ही पार्ट है उसमें कि यू हैव टू अटेंड 2 month मैंडेटरी इंटर्नशिप, तो सबको इंटर्नशिप भी मिलती है। एंड जब इंटरव्यू में बैठा था आई थिंक आई गॉट 1 ऑफर फ्रॉम अ कंपनी, बट डे 2 में मैंने जैसे बताया मुझे जनरल मैनेजमेंट एक्सप्लोर करना था, तो आई स्विच टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। फाइनल प्लेसमेंट में भी आई सैट फॉर अनदर कंपनी इन कंसल्टिंग। डे 1 में आई गॉट दैट ऑफर, देन आई वाज थिंकिंग अबाउट अदर कंपनीज इज वेल कि मैं डे 2 डे 3 में जो कंपनीज आएंगी उसमें से कुछ टारगेट थे, बट आई थिंक वो इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है। मैं सोच रहा था स्टार्टअप ज्वाइन करने का, स्पेशली स्टार्टअप्स भी आता है प्लेसमेंट्स में। यस, डे 3 में आपके स्टार्टअप्स भी आते हैं, सो वो ESOP कॉम्पोनेंट भी रहता है, एंड आई थिंक स्टार्टअप्स बेसिकली थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, बट दे गिव ESOPs एज वेल, सो ग्रोथ का पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है, वर्क करने का पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है, सीखने का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दोज कंपनीज, बट आई थिंक वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि नहीं, डे 1 में जॉब लग जाए एक बार, इट्स एटलीस्ट सिक्योर, जबकि आपको पता है कि सब लोग प्लेस होने वाले हैं, सबको अच्छा प्लेसमेंट लगने वाला है, बट स्टिल दिमाग में रहता है कि यार मैं डे 1 में प्लेस हो जाऊँ। तो डू ऑल IIM ग्रेजुएट्स गेट प्लेस्ड बाय IIM? या डेफिनेटली, मतलब आप जो अभी न्यूज़ देखते होगे कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग प्लेस या फिर एलुमनाई को रीच आउट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज सम पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग सर्टेन ऑफर्स, एंड वो भी एक्सटेंडेड प्लेसमेंट में चला गया। इट्स लाइक IIM का प्लेसमेंट प्रोसेस 7 to 10 days में कंप्लीट हो जाता है, ब्रेक्स रहते हैं बीच में, 7 to 10 days में कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर वो एक्सटेंड हो गया, मान लो कोई बच्चा बच गया है, वो उसको एक्सटेंडेड प्लेसमेंट बोलते हैं, सो दैट IIM डज नॉट कंसिडर गुड, बिकॉज उनको 7 to 10 days में अपना रेप्यूटेशन दिखाने के लिए वो खत्म करना है। जब वो एक्सटेंडेड प्लेसमेंट पीरियड में चला जाए, उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो अनप्लेस रह गया, इट्स जस्ट दैट वो प्लेसमेंट पीरियड के बाहर प्लेस हो जाएगा। सो इट्स अ मीडिया नैरेटिव, राइट, एंड बिकॉज ऐसा कोई प्लेस नहीं हो ऐसा नहीं है, एंड ऑब्वियसली इट्स द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट एज वेल कि मुझे इतना का ऑफर नहीं चाहिए, मैं इस कंपनी के लिए नहीं बैठूंगा, आई वांट एन ऑफर एटलीस्ट जो इतना पे करे मुझे। सो व्हाट इज द लोएस्ट ऑफर दैट यू हैव सीन एन IIM ग्रेजुएट गेट? आई थिंक 16-17, लाइक अहमदाबाद से अगर मैं बात करूँ, आई थिंक 16-17, बट अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो तो यू विल गेट द एग्जैक्ट फिगर, मे बी 13-14 होगा, बट लास्ट आई हैड हर्ड डे 3 में जिसका हुआ था
लास्ट पर्टिकुलर पर्सन 30 आई थिंक 16-17 लाख. सो ऐसा होता है कि जो डे 1 की कंपनीज है वो सबसे ज्यादा पैकेज वाली होती है, डे 2 एंड देन डे 3? नो, नॉट लाइक दिस. सो वो डोमेन वाइज होता है. डे 1 Okay. में विल बी योर कंसल्टिंग फाइनेंस कंपनी, डे 2 में विल बी योर मार्केटिंग जनरल मैनेजमेंट, डे 3 में विल बी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्टार्टअप्स एंड स्टफ. सो डे 3 में भी ऐसा हो सकता है कि सम कंपनीज ऑफरिंग द हाईएस्ट पैकेज कंपेयर टू डे 1 एंड like day Okay. 2 as well. So that is domain wise, but because startups कुछ आते हैं day 3 में, you can expect कि ऐसा कोई कंपनी हो जो कम ऑफर करता है. तो आर देयर एनी फॉरेन कंपनीज एज वेल, जैसे कोई अब्रॉड की कंपनी आती है हायर करने के लिए फ्रॉम अहमदाबाद? Yeah, definitely. I will not say a lot of companies, but because I think specifically लोग भी सोचते हैं कि इंडिया में जॉब ले ले या stuff. A lot of people, what they do is they work for a couple of years in consulting, maybe in India. After that, they switch abroad. एंड फाइनेंस में ऐसी कंपनीज है, मार्केट्स रोल के लिए आते हैं, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, बेसिकली एम्स्टरडैम के लिए आते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये सब टाइप के रोल्स के लिए. एम्स्टरडैम से एक कंपनी आई बिलीव आई थी. आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट कंपनी एज वेल, सो स्पेसिफिकली आई रिमेंबर दैट. बट मुझे इंडिया में रहना था तो मैंने स्पेसिफिकली इतना ध्यान नहीं दिया था फॉरेन कंपनीज में. बट ऐसे काफ़ी सारे होते हैं कंसल्टिंग कंपनीज भी. बट यू स्ट्रैटेजी स्टिल गॉट टू वर्क एट एक्सेंचर एंड तुम्हें इन गल्फ, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? And did you know कि तुम्हें पहले से ये मिलने वाला है, या did you aim for that? No, you don't really aim for that, but consulting में अगर आप हो, आप सोच ही सकते हो कि कहीं कभी ना कभी आप फॉरेन जाओगे ही, like in some country or the other. And Middle East काफ़ी ज़्यादा अभी वो फोकस पे है because a lot of consultants are working on Middle East projects. So that happened. I joined a particular project. In that particular project वो Middle East का था. उसके बाद वो कंटिन्यू होता गया. I think 2 years मैंने Middle East projects में ही वर्क किया होगा. So वो अपॉर्चुनिटीज मिल गई टू गो देयर एज वेल इन सऊदी एंड दुबई एज वेल. बट एंड मैं जिस टीम के साथ वर्क कर रहा था दैट वाज आल्सो बेस्ड आउट ऑफ दुबई. सो मैं इंडिया काउंटर पार्ट कोई नहीं था मेरा. मैनेजर एंड एवरीथिंग वाज सिटिंग इन दुबई इटसेल्फ. सो दैट हैपेंस प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट बेसिस. So why is the consulting job so hyped? I think people want to show that they got into consulting, but the idea is simple कि consulting के बाद वो ओपन रहता है आपके लिए पाथ. वंस यू गेट इनटू कंसल्टिंग यू हैव मेनी एग्जिट ऑप्शंस कि आप किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में अगर आप गए तो आप सोचोगे कि आप मार्केटिंग में ही करियर बनेगा. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले गए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही करियर बनाओगे. कंसल्टिंग में वंस यू गेट इन उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले जाओगे, किसी कंपनी में कोई फर्म ज्वाइन कर लोगे लाइक एज स्ट्रैटेजी ऑफिस उनका, या फिर मार्केटिंग में भी चले जाओगे. इट काइंड ऑफ कीप्स योर ऑप्शंस ओपन. सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल चूज दैट. एंड मनी ऑब्वियसली इज देयर. आई वुड नॉट से मनी इज नॉट देयर. मतलब आप, मुझे लगता है हाइंडसाइट में थोड़ा अंडर वैल्यू कर लेता हूँ कंसल्टिंग को, सिंस आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस. बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रोसेस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क इन अ प्रोजेक्ट, तो आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, जिस भी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, वहाँ पर द पीपल हु हैव डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट सेम इंडस्ट्री वुड बी वर्किंग विथ यू. सो आप 6 months उनके साथ प्रोजेक्ट करते हो तो डेकेड्स ऑफ उनका एक्सपीरियंस आप एब्जॉर्ब कर लेते हो लाइक इन दो 6 months. So learning curve obviously काफ़ी ज़्यादा है. In hindsight I guess people underplay it because ultimately आप फिर सोचते हो कि यार मैं डेक्स बना रहा हूँ, मैं एक्सेल में ही वर्क कर रहा हूँ. But you get to learn a lot. You interact with such people. Can you also tell us about what exactly is a consulting job in a very simplified manner? Because for example जब मैं भी बैचलर्स पढ़ रही थी लास्ट फाइनल ईयर तक भी मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट करती है. A lot of students don't know about this domain because ये बहुत मेन स्ट्रीम डोमेन नहीं है. जैसे मार्केटिंग फाइनेंस काफ़ी हाइप्ड एंड मेन स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन है. Difficult question because I don't know कि कोई भी कंसल्टेंट आंसर कर सकता है what they do. It's basically solving problems in like short, if I have to say. It's solving problems for the company. एंड जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग में एक स्पेसिफिक डोमेन है, तो कंसल्टेंट भी हो सकता है किसी मार्केटिंग का काम करे. फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर कंपनी हैज़ अ स्पेसिफिक नीड, दे वांट टू एंटर अ मार्केट से, उनको अपना GTM स्ट्रैटेजी बनाना है. तो हो सकता है कंसल्टेंट विल हेल्प देम इन दैट GTM स्ट्रैटेजी. GTM स्ट्रैटेजी में वो आपका मार्केट एनालाइज करेगा, वो आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग डिसाइड करेगा. वो सब चीज़ें कंसल्टिंग में हो सकती है. कंसल्टिंग में ऑपरेशंस रोल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको, मैं टूरिज्म में वर्क कर रहा था, तो इन दैट पर्टिकुलर थिंग मैं गेस्ट का जर्नी अलाइन कर रहा था. गेस्ट का एंड टू एंड ऑपरेशंस कैसा रहेगा वंस दे लैंड इनटू दैट टूरिस्ट साइट, उसके बाद उनका पूरा जर्नी कैसा रहेगा, तो मैं वो डिज़ाइन कर रहा था. सो इट वाज काइंड ऑफ अ प्रोसेस मैपिंग और ऑपरेशंस रोल था. एंड काफ़ी सारे अदर प्रोजेक्ट्स में भी वर्क किए थे. सो इट्स नॉट दैट वन डोमेन में आप रहते हो, दे आर स्पेसिफिक लाइक बहुत सारे डोमेन्स रहते हैं. द आइडिया इज कंपनी को कोई प्रॉब्लम रहेगा, वो आपके पास एक कंसल्टेंट के पास आएगा, देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आई वांट टू सॉल्व दिस. देयर विल बी सम एक्सपर्ट इन दैट कंसल्टिंग फर्म जिसने बार बार उसी सेम प्रॉब्लम काफ़ी सारे डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सॉल्व किया है. सो दे विल असेंबल अ टीम
go to that particular project, basically work on behalf of the company and solve that particular issue for the company. So in short, यही होता है consultant का काम. Wow. Okay. Thank you for simplifying this for our audience. So you also got a fast track promotion. वो कैसे कर लिया तुमने? अगेन थोड़ा लक फैक्टर होता है इन चीज़ों पे. अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में हो, आई थिंक किसी भी सक्सेस You फैक्टर में ना, undermine yourself a lot. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप, मुझे लगता है सक्सेस स्टोरीज से ना आप लक फैक्टर हटा देते हो. नाउ द आइडिया वाज मैंने जिस प्रैक्टिस को ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रैक्टिस शुड हैव ओपन स्लॉट्स फॉर प्रमोशन. अगर उसके पास बहुत सारे सीनियर लेवल है जिनको पहले प्रमोट करना है, मान लो 3 years 4 years एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उनको पहले प्रमोट करना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ पीपल, देयर वर अ लॉट ऑफ स्लॉट्स इन माय प्रैक्टिस, सो दैट हेल्प्ड. उसके बाद आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलना जहाँ पर क्लाइंट बेसिकली जो अच्छा नहीं जा रहा है, एंड देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न अराउंड दैट प्रोजेक्ट. देन गेटिंग अ मैनेजर जो आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके प्रपोज करे कि ही शुड गेट प्रमोटेड, because obviously in terms of number of years of experience, number of months of experience within the firm, outside the firm as well, I did not have enough. So HR का पहला ही vote रहता कि he does not have enough experience. So the manager has to go out of the way and pitch your case कि why he deserves it. उसके बाद the client has to come and tell you, the client should be good enough to actually write a recommendation for you कि I want this particular person in my project, he should be recommended, he's already performing of the next level. So काफ़ी सारी चीज़ें कल्मिनेट कर जाती है. आई थिंक जो हार्ड वर्क होता है एंड जो बेसिक स्किल्स होती है वो ऑब्वियसली बेस्ड रहता ही है. नाउ आई थिंक ऑब्वियसली मैं अंडरमाइन थोड़ा कर लेता हूँ, बट द आइडिया इज कि वो बेसिक चीज़ें होती है, काफ़ी लोग वो चीज़ें करती हैं, बट द आइडिया इज कि लक फैक्टर भी रहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट स्पेशली इन कॉर्पोरेट काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं. इतने सारे एनालिटिकली फैक्टर्स बताने के बाद यू टेलिंग अस लक इज इम्पोर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको उस इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा. टीम पे काफ़ी डिपेंड करता है, आपकी विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है. इट्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट्स द बेस फाउंडेशन जो रहता है. वर्क सब करते हैं, अगर मतलब एटलीस्ट 50% मान लो वर्क करते होंगे, बट ओनली अ फ्यू विल गेट प्रमोटेड. स्पेशली अर्ली प्रमोशन का, फास्ट ट्रैक प्रमोशन का अगर आप बात करो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें दैट हैव टू वर्क इन योर फेवर एज वेल. ओके. एंड इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग सो वेल एट वर्क, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें लगा मुझे अब कंटेंट क्रिएशन कर लेना चाहिए? यार it's about owning your time, I guess. I was really enjoying the entire process. मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था कंपनी में. A lot of people in my company might not be enjoying the work. It depends on the project. But I was enjoying the work. But the idea was that if you want to own your time, obviously you have to do something on your own, right? And I started with this content creation, started teaching quants to people, then shifted my base to like giving overall strategy for MBA, CAT preparation and stuff. I started enjoying it, started interacting with the students as well. I started enjoying that part. And the biggest thing is, I guess, I get to own my time now. So that's, I think, the fundamental reason I decided to quit. What exactly does owning your time mean? So I do work with a lot of NGOs as well. If I have to decide on a weekday at 12 or 1 in the afternoon that I have to, go visit this NGO, I can do that, right? I don't have to take someone's permission. I don't have to apply for leaves. So that's a very, very important thing for me. If I have to spend time with family, if I have to take someone from my family somewhere, I can do that on any weekday without taking a permission, and I can cover up for that during the weekends. So that definitely helps. So when and how did you start your content creation journey? So it started when I was at IIM Ahmedabad itself, but that was more like I just started for the sake of it. I started teaching quants because I loved quants. I started teaching quants, but that is not something that would have obviously increased my followers or anything, because that's a very niche space. And even CAT preparation, MBA is a very niche space. But the idea is that after that, I realized I have to expand it a little, go to education in general. I think 2023, I started content creation like a bit seriously on Instagram. And mid of 2023, July or August, I started on YouTube as well. Saw that, okay, there is potential in this. After that, probably after a year, I quit my job. Okay. So when did you decide that this can also give you as much fruit as your job is giving? Like, do content creators actually make money? They can earn money. Definitely, content creators today can earn money. But one thing is definitely wealth cannot be a sign of your credibility. That when wealth becomes a sign of your credibility, that destroys the entire process of content creation. So I don't like the reels and everything that comes out. You would have also seen reels, right? About content creation. I earn this much in a month. I earn this much in a month. मैं next पूछने वाली थी. Right, but obviously I won't reveal ever how much I earn how in a much month. does an average content creator make
they can earn definitely a lot of money. The reels that you see are not entirely wrong as well. But the idea is that obviously it's platform dependent as well. You depend on Instagram, YouTube. There are some dependency on the platform. And there are various different factors. So wealth definitely cannot be a sign of your credibility. But to answer your question, yes, content creators today at least can earn significant amount of money. Probably a lot that their education would not have given them. Wow. So a content creator can actually make more money than a consultant. Depends. Like a lot of people start comparing a fresh graduate who has just joined consulting with a content creator, right? So, but that's not the right choice. An established content creator, then compare it with a partner, right? A partner in a consulting firm. So, in that way, you can say yes. How much does a partner in a consulting firm make? Junior partner definitely 1.5 CR or 1 to 1.5 CR. If it goes senior partner, depending on the business that you bring in, it can go upwards of 2 CR, and it can be any limit. Literally, after once you become a senior partner, then it depends on the business that you bring in, but definitely in crores. So that is there. And as content creators, I believe you see some of the established content creators. A lot of people, when they start their content creation journey, obviously everyone is not able to earn the same amount, and it depends on your niche as well in which you are starting. Maybe if you are just an entertainment creator, you need to grow your audience, you need to expand your audience, you need to build a significant audience to get good money as well. So that depends on your niche, depends on your base as well. Not everyone can become a successful content creator. So it depends. So the management strategies that you learned at IIM Ahmedabad, are they helping you in any way in your content creation journey? Not significant, like it depends on how you work, but yes, it does help me in setting up certain processes. For example, when I was working as well, I was doing content creation alongside that. So I had very established processes that, okay, I'll record it this way. It will straight away, it will be automated. It will, my files and everything will go to a particular document. My editors, graphic designer will pick it up from there. They will get a notification. They will pick it up from there. And the graphic designer will get the idea of the thumbnail. They will share it with me. I'll get a notification. I'll approve it. And once I approve it, and everything will be kind of automated. So setting up this entire process helped obviously reduce time, because I was working at that time as well, could not give so much time to content creation. So setting up the entire process, definitely I think you cannot attribute to management, but I think I would have learned it anyway as well. Even if I was just working without a degree or anything, I think I would have learned it anyway. So I think the decision making and setting up processes is the main thing that you learn in an MBA. Not really. You can learn it while working as well, but MBA, because there's a lot to do, you need to prioritize your tasks. So definitely you learn it to an extent, but ultimately I think it does come by working as well, because it's ultimately theoretical thing that you're doing, and it's kind of a safe environment that you have. As a student, if I reach out to any particular company, they would be more than willing to share information with me, but I'm a student at that point of time. Once I come out to the real world, there are a lot of privileges that I don't get because I'm not a student anymore. And the same person would be treating me very differently. Right. So getting information from there, learning from them would be very difficult. So I think those are certain things. As a student, it becomes easier. So you learn certain things. But once you start working, that's when you have the actual learning of how things work in the real life, because you don't get all the privileges that a student does. Right. So when you were a student, you might have been around 20 or 21. What is that one advice that you would give to your younger self now? I think when I was doing my MBA, I was 23, 24 because I worked as well. But the idea is, if I have to give some advice to my younger self, I would say in school life, at least, that's more important, because that is the stage where I was learning as well. I was good in certain subjects, maths and science, physics especially. I was good in certain subjects. But just because of that rank, school mein rank aata tha, and I focused on every subject. Like मुझे history, biology ये सब subjects इतने अच्छे नहीं लगते थे, but obviously उसमें उसको पढ़ने में भी ज़्यादा time लगता था, and I had to focus on that subject because मुझे marks चाहिए था, मुझे वो rank देखना था, मुझे overall marks सबसे अच्छा चाहिए था. The idea is, अगर मैं 96% नहीं लाता boards में, अगर मैं 90% भी लाता, then also my life would have been exactly the same. But बहुत ज़्यादा लर्निंग ज़्यादा होती, बिकॉज मैं जस्ट फोकस करता मैथ्स पे, जस्ट फोकस करता फिजिक्स पे, एंड हिस्ट्री को लाइक आई वुड हैव केप्ट इट एज सेपरेट कि ठीक है मुझे यहाँ पर 85 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, इट वुड नॉट हैव मेड अ डिफरेंस. सो आई वुड हैव फोकस्ड ऑन थिंग्स आई लव टू डू एंड लेस फोकस्ड ऑन दैट सोशल वैलिडेशन कि मुझे इतना ही मार्क्स चाहिए, इतना ही रैंक चाहिए. सो व्हेन आई वाज गिविंग इंपीरियल का मैंने 3 इंटरव्यूज दिए थे. इंपीरियल कॉलेज का दिया था और
लंदन बिजनेस स्कूल का दिया था और एक और यूनिवर्सिटी का दिया था. तो सारे इंटरव्यूज़ के फॉर्मेट्स काफ़ी अलग थे. इंपीरियल में एक ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जो मुझे 30 सेकेंड्स में आई हैड टू टेल देम वट एवर आई कुड, जो क्वेश्चन पॉपअप हुआ है स्क्रीन पे, कंपेयर टू अ लंदन बिजनेस स्कूल का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने मुझे 2 घंटे तक इन पर्सन ग्रिल किया था कि वाई आई शुड जॉइन दैट कॉलेज. डीप डाइव करते करते दे हैड रीच्ड सम नेक्स्ट लेवल वेयर दे न्यू एवरीथिंग अबाउट मी एंड दिस वाज टेकन बाय एन एलुमनाई. तो कंपेयर टू दिस, हाउ इज एन IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू? सो IIM अहमदाबाद या फिर कोई भी IIM का इंटरव्यू हो तो दैट विल टिपिकली लास्ट फॉर 20 मिनट्स से 40 मिनट्स तक लास्ट कर सकता है. एंड एज यू सेड काफ़ी डिटेल्स में जाते हैं, आपके बैकग्राउंड में जाते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कैन बी रैंडम क्वेश्चंस एज वेल. सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू, आई थिंक जो फॉरेन में आपने देखा होगा, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट एज वेल. इंडियन MBA कॉलेजेस में भी सेम टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं. आपके बैकग्राउंड में डीप डाइव करते हैं, अगर आपने SOP लिखा था या फिर कुछ भी किया था तो उस पर डीप डाइव करते हैं. बेसिकली इट्स अराउंड योर बैकग्राउंड, आपके लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो व्हाट आर द वियर्डेस्ट क्वेश्चंस जो एक IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में आज तक पूछे गए हैं? वियर्डेस्ट काफ़ी सारे हो सकते हैं बिकॉज कोई ना कोई इंटरव्यू में कोई प्रोफेसर को मन किया कि एक क्वेश्चन पूछ लिया है ऐसा. तो डेफिनेटली काफ़ी सारे. एक बार एक कैंडिडेट ने बताया था, उससे पूछा गया था कि इफ़ यू हैव टू गिव अ लोन टू मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क, हु वुड यू चूज एंड वाई. तो बेसिकली एक काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चन है बट थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए कि रिस्क किसके में ज़्यादा है, ये सब है, तो वो थिंकिंग चाहिए. उसके बाद एक से पूछा गया था कि एक कैंडिडेट जब एंटर कर रहा था रूम, उसने अपना वॉच देख लिया था, तो फर्स्ट बैठते ही उससे पूछा गया व्हाई डिड यू लुक एट योर वॉच. तो उसको मतलब 5 मिनट उसी पे चीज़ पे पूछा गया कि क्या डिटरमाइन हुआ वॉच देख के एंड क्यों वॉच देखा, वॉच क्यों पहना है, एंड उस चीज़ पे कंटिन्यू रहा कॉन्वर्सेशन फॉर 5 मिनट्स. इट कैन बी प्रीटी रैंडम. व्हाट दे आर चेकिंग इज बेसिकली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. मेरे से फॉर एग्जाम्पल IIM कोई कोड इंटरव्यू में व्हेन आई वाज एंटरिंग द रूम, उन्होंने पूछ लिया कि ओके व्हाट शुड वी आस्क यू. ऑब्वियसली इसका कोई आंसर नहीं था मेरे पास. आई सेड दैट व्हाटएवर यू विश टू आस्क यू कैन आस्क सर. मुझे लगा कि नॉर्मल आंसर है बट उन्होंने थोड़ा ले लिया कि अच्छा कुछ भी पूछ सकते हैं. तो उन्होंने पूछा अच्छा एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बताओ. सो आई ट्राई टू गेस्टिमेट द आंसर बट दे वर लाइक नो आई वांट द एग्जैक्ट पॉपुलेशन. देन मैं फिर ओवर स्मार्ट होने गया कि इवन इफ आई टेल यू द एग्जैक्ट आंसर, बाय द मोमेंट यू रिस्पॉन्ड देयर वुड बी अनदर पर्सन हु विल बी बोर्न. सो आई कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट नंबर. So they did not take that, no, I want the exact number. Then they said, okay, another question. If you answer this, you are in. If you don't, you are out. Then they asked me exact number of personnel in Indian Army. कि एग्जैक्ट बताओ. अगेन आई ट्राई टू गेस्टिमेट कि अच्छा इतने रेजिमेंट्स हो सकते हैं, इतने स्टेट्स है, इतने बॉर्डर एरिया है, तो हो सकता है. मैं गेस्टिमेट करने का ट्राई कर रहा था बट दे वर लाइक नो दिस डजंट वर्क, गिव मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सनल. एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली आई कैन नॉट आंसर दैट. सो वो सारी चीज़ें भी होती हैं. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपको दिया जाता है, ट्राई किया जाता है आप स्ट्रेस में जाओ सो दैट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट किया जाए. So did you get rejected then? सरप्राइजिंगली एक्सेप्टेड. मैंने वो इंटरव्यू कन्वर्ट भी कर लिया था बट द आइडिया वाज काफ़ी वियर्ड इंटरव्यू था. आई थिंक 10 मिनट्स लास्ट किया था वो इंटरव्यू, दैट्स इट. एंड जितने भी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. इसके बाद मुझसे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था. उस पर भी सारे इंटरव्यू वर लाइक नो 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 दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. क्या प्रोजेक्ट है इसमें, इम्पॉर्टेंट क्या इनोवेशन क्या है. दे वर कॉन्स्टेंटली ग्रिलिंग. 10 मिनट्स था एंड आफ्टर विच मतलब दे सेड ओके यू कैन लीव नाउ. मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड फेस से बट स्टिल कन्वर्ट हो गया. बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है वो देख रहे थे कि क्या मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि नहीं उस इंटरव्यू से. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू. काफ़ी हम्बल वे में अगर आप रिस्पॉन्ड करो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो एंड कंपोजर रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, आई थिंक दैट विल हेल्प यू क्रैक द इंटरव्यू. एंड आई थिंक इंटरव्यू का 40% कॉम्पोनेंट रहता है, तो 60% कैट स्कोर एंड जो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट जिसमें आप कुछ लिखते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो भी डिटरमाइन करता है. सो आई थिंक वो कॉम्पोनेंट भी अच्छा गया था. मे बी डिसेंट एवरेज मार्क्स मिला होगा इंटरव्यू में, रेस्ट कॉम्पोनेंट से कन्वर्ट हो गया. ओके, सो एक ग्रुप डिस्कशन भी पार्ट होता है ऑफ एन इंटरव्यू? Not all IIMs, certain colleges can have. XLI I think conduct करता था, अभी शायद करता है कि नहीं, I don't remember exactly. IIM Shillong or someone used to do this. So सारे IIMs नहीं करते but it used to be a part but now it has been replaced by this written ability test. आपको एक case study दिया जाता है या फिर कोई एक topic दिया जाता है, उस पर आपको अपना opinion लिखना रहता है. So that has replaced GD in most of the B schools now. Okay. ठीक है. एक content creator एक reel post या पॉडकास्ट का कितना चार्ज कर सकता है? It can depend on the niche, the brand that you're working with, also on obviously the base of the creator as well, and उस creator का कितना credibility है market में. So I'll not take names obviously, but अगर आपके पास million followers है तो आप obviously charge कर सकते हो. 5+ of ही charge करोगे. It can go up to tens of lakhs as well.
अगर आप एक रील पोस्ट कर रहे हो, it depending on the brand, your niche and the credibility of the creator, as I said. So as I said, money है content creation में, it's not that money नहीं है, but I don't like to talk a lot about this कितना wealth है, कितना एक रील का चार्ज करते हैं, because that's not the ultimate aim as a content creator. It's more about आपका following कितना, आपका advice कितना लोग ले रहे हैं. एंड मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड भी पसंद नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, कि मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है. नाउ अल्टीमेटली द डिसीजन लाइज ऑन द ऑडियंस एज वेल. सो मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ऑनेस्टली. सो दैट्स वाई मैं वेल्थ एंड ये मनी ये सब के बारे में ज़्यादा बात करता नहीं हूँ कभी. Thank you. You've been too humble with your answers. Politically correct, you can say. Thank you so much, Anant, for all the insights. It was really great to have you on our podcast. Thank you, Shama, for inviting me. It was great talking to you. Hope audience gets something out of it.